Hello everybody. Hope you all are doing well. Here's Deepika Dilani, the General Secretary, Female Wing of Sindh Educational Organization. Firstly, I just want to welcome you all in this session. As SEO, always try SEO, the Sindh Educational Organization. Always try to hard, always try hard to provide the best of best to all the students and to all the people who are unaware of the golden opportunities that come across their ways. So, today, once again, SEO has brought a great session for all the seekers like you who want to pursue their degree in the foreign but really worried about all the expenses and trying their hard to get the scholarship somewhere but seems confused, questioned, and no guidance of how to apply, and all the opportunities go in vain because of no awareness. And today we have invited a student of Sakkar IBA University who was awarded with the gold medal in his bachelor's degree and pursuing his master's degree in Norway and securing Erasmus scholarship there. So now I would like to hand over the mic to our respected guest speaker Shubhan Ali Mangi to tell his journey from Pakistan to Norway and guide us about the Erasmus scholarship. So, Mike is over to you. Thank you so much, Deepika. It was a wonderful introduction about me. Actually, it's really hard to tell the journey from Pakistan to Norway in just like couple of minutes. So I will just tell like what process I followed. Indeed, the journey was really interesting and struggling as well. Um, so these are some of the contents for today's presentation. I will be going it one by one. So first, I will introduce myself. Deepika done it well, but I have a couple of more things to discuss about me. My name is Subhan. Basically, I am from Nawab Shah, Sindh. Currently, I am doing masters in applied computer science from one of the top universities in Norway, that is NTNU. ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ मास्टर्स, इट्स ऑन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसका नाम है नॉरपार्ट कनेक्ट. ये स्कॉलरशिप क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. Previously, जो मेरी एजुकेशन है बिफोर दिस मास्टर्स, आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम सक्कर यूनिवर्सिटी. और मेरी जो बैचलर्स थी दैट वाज कंप्लीटेड इन 2021 and that also was funded by OGTCL and I had a fully funded scholarship. NTHP का नाम शायद सुना हो, जो सक्कर IBA से हैं या जो सक्कर IBA के बारे में जानते हैं, तो it's one of the prestigious program that offers fully funded scholarship to the talented and needy students. Throughout my degree, I was good in studies, so my department awarded me gold medal for my highest grading point average in the whole batch. As far as my experience is concerned, I have been a software engineer in a couple of companies in Pakistan. Like I worked as a software engineer in United Bank Limited, UBL. और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ नॉर्वे में. During studies part time and in vacations full time software engineer. There's a company called Norwegian Cyber Range. उसमें मैं as a software engineer हूँ और I work on multiple software projects. For social life, I have been really active when I was in my bachelor's. सक्कर IBA में मैंने बहुत काम किया है socially. Like I was part of student council, I was part of a lot of communities, clubs, and so on. But I have mentioned one that is I am founding member of Sindh Green Foundation. It's an NGO
that works for capacity building and doing things which can benefit youth. उसके अलावा जो मेरे रिसर्च इंटरेस्ट हैं that are explainable artificial intelligence, as I'm from computer science background, so I mainly work in generative AI, deep learning, but I really focus on medical and healthcare domain. रिसर्च इंटरेस्ट में क्यों बता रहा हूँ ये फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि अभी मैंने क्यों बताया, बट दोज हु आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इनके लिए बता रहा हूँ मैं कि मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है. ओके, दिस वाज समथिंग अबाउट मी. अब आते हैं नॉर्वे पे. तो सबसे पहले आपकी थोड़ी मोटिवेशन बिल्ड कर लें कि व्हाई यू शुड कंसीडर नॉर्वे एज योर डेस्टिनेशन फॉर योर हायर स्टडीज. सबसे पहली बात जो अट्रैक्ट करती है अबाउट नॉर्वे is no language barrier. You have like complete freedom when you talk to people. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो if you can communicate in English, you can communicate with everyone. तो दूसरी जो सबसे बड़ी नॉर्वे की अच्छी बात है कि इट्स रियली वंडरफुल कंट्री. आपको बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, लेक्स, नेचुरल व्यूज मिलेंगे. जैसे कि एक पिक्चर लगाई हुई है जो कि मेरी ही है. ये हम गए थे जो है ट्रोलटुंगा, एक नॉर्वे का बहुत ही फेमस माउंटेन है, तो वहाँ की निकली हुई पिक्चर है. बट नॉर्वे इज अमेजिंग, यू कैन सर्च इट ऑन वेब, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स अबाउट इट. स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं. लाइक इट्स अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, सुपरवाइजर्स आर रियली गुड एंड सो ऑन. इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको, लाइक यू कैन हैव एक्सचेंजेस, यू कैन विजिट यूरोप, क्योंकि नॉर्वे का जो वीजा है वो शेंजन वीजा होता है. अगर आप स्टडी वीजा भी आपको मिलता है, दैट्स आल्सो शेंजन वीजा. तो यू कैन विजिट लाइक ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज including very famous France, Germany, Italy, and so on. Means whole Europe you can visit it. In terms of security, Norway is one of the safest country. जब आप सर्च करेंगे टॉप सिक्योर कंट्रीज इन द वर्ल्ड तो आपको नॉर्वे टॉप 5 में मिलेगा. 50% आपको वर्क परमिट मिलता है. लाइक आप अगर पढ़ने आते हो, यू कैन आल्सो वर्क हियर, यू कैन अर्न मनी. तो 50% आपको अलो होता है. वैसे 100% में ये होता है कि जब आप फुल टाइम जॉब करते हो तो 8 घंटे अलो होता है, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो यू हैव 4 आवर्स. तो स्टडी वीजा पे 4 आवर्स पर डे आपको अलो है, यू कैन वर्क पार्ट टाइम. सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लाइक 17 to 90 यूरोस आपको मिल जाते हैं, 19 यूरोस पर आवर, जो कि बहुत एक अच्छा अमाउंट हो जाता है. यू कैन अर्न अराउंड 3 to 4 lakhs पाकिस्तानी रुपीज बीइंग ए स्टूडेंट. तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर डील. और अगर आप नॉर्वे से मास्टर्स करते हैं तो यू कैन अर्न जॉब सीकिंग वीजा आफ्टर योर मास्टर्स. तो विद इन आपको 1 साल का वीजा मिलता है आफ्टर योर मास्टर्स. लाइक 2 साल का मास्टर्स होता है तो 1 साल का और आपको एक्सटेंडेड वीजा मिलता है, इन विच यू कैन सर्च योर जॉब हियर इन नॉर्वे. और अगर आपको जॉब मिल जाती है, यू कैन अप्लाई वर्क वीजा, दैट इज फॉर 3 years. अच्छा, वर्क के कौन से बेनिफिट्स हैं वो भी मैंने एक स्लाइड रखी हुई, तो हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जॉब करने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं. इन स्लाइड में से अगर किसी को कोई भी सवाल हो, दे कैन पुट इनटू चैट. हम लास्ट में फिर उनको डिस्कस कर लेंगे इन क्यूए सेशन. ओके जी, अब मैं थोड़ा बता दूं कि नॉरपार्ट कनेक्ट क्या है, जिसके थ्रू मैं पढ़ रहा हूँ. तो ये सेशन हमने फोकस रखा था टुवर्ड्स सीएस स्टूडेंट्स जो कि सकर आईबीएम में सीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, अलुमनाई हैं. तो नॉरपार्ट कनेक्ट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन सकर आईबीएम यूनिवर्सिटी और नॉर्वे की जो यूनिवर्सिटी है एनटीएनयू. एनटीएनयू का फुल फॉर्म नॉर्वेजियन में है, लेकिन इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इन दोनों के बीच में कोलेबोरेशन है. अच्छा, इसको जो फंड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉर्वेजियन गवर्नमेंट. डीकू एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे पास एचईसी होता है, यहाँ पे डीकू है जो कि इसको फंडिंग दे रहा है. और इसमें 6 स्कॉलरशिप्स होंगी फॉर मास्टर्स, जिसमें से 5 ऑक्यूपाई हो चुकी हैं. लाइक 2 हम आए थे स्टूडेंट इन 2022 और अभी 2023 में 3 स्टूडेंट आ रहे हैं. तो पीछे एक वैकेंसी अभी भी है. जो अभी स्टूडेंट ग्रेजुएट होंगे सकर आईबीएम से, दे कैन अप्लाई. और जो ऑलरेडी अलुमनाई हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं आगे मैंने लिखी हुई है एक स्लाइड में, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे. बट इसमें सिर्फ सकर आईबीए के ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं. सकर आईबीए के बाहर के लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है.
एक्सचेंज जो फैसिलिटी है वो जो करंट स्टूडेंट बैचलर्स अभी थर्ड ईयर में आएंगे और फोर्थ ईयर में जो आएंगे वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज। 14 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, स्टिल देयर आर अराउंड 28 और 29 वैकेंसीज जिसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक्सचेंज इज आल्सो फुली फंडेड। और इसमें सकराइबी के जितने करंट स्टूडेंट हैं वो एक्सचेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट के, और जो ग्रेजुएट्स हैं वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये सब सकराइबी के लिए थी तो बाकी यूनिवर्सिटीज वाले वो कहाँ जाएं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इरास्मस के नाम से। बहुत लोगों को पहले से पता होगा, कुछ लोगों के लिए शायद न्यू भी हो, लेकिन ये बहुत फेमस है तो आई थिंक हर किसी को आइडिया होगा कि व्हाट इज इरास्मस। लेकिन इरास्मस जो है ये यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं। इसमें पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। कंपटीशन इज रियली टफ, बट पाकिस्तान से बहुत लोग इसमें ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और हर साल इसमें स्कॉलरशिप विन करते हैं। तो अराउंड लास्ट ईयर जब की जो फिगर है तकरीबन 192 स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान से ये स्कॉलरशिप विन की थी, एंड दैट वाज टॉप इन द वर्ल्ड। लाइक हर साल पाकिस्तान टॉप करता है, तो हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन एक बनी हुई है इरास्मस में। तो एक ये एडेड बेनिफिट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो प्रीवियसली बैचेज हैं उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है, तो यू गाइस कैन विन दिस स्कॉलरशिप। इसके जो मैं थोड़ा स्पेसिफिक होकर नॉर्वे के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि नॉर्वे के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से मास्टर्स प्रोग्राम हैं जो कि इरास्मस के थ्रू हो सकते हैं। एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है उसका नाम कोजी है, कंप्यूटेशनल कलर एंड स्पेक्ट्रल इमेजिंग। इसमें वो लोग मास्टर्स कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मास्टर्स किया हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये थोड़ा रिलेटेड है कलर साइंस और इमेज प्रोसेसिंग से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जो है सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह के कोर्स करते हैं, तो दे कैन अप्लाई। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है और ये मैं लिंक जो है शेयर भी कर लूंगा, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है एसईओ का, वहाँ पे मैं स्लाइड एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो यू कैन गो। पर हम अभी क्विकली चले भी जाते हैं, पहले इस लिंक पे जाते हैं। इसमें वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि नॉर्वे से रिलेटेड हैं, इरास्मस के ही प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें मैंने अभी कंट्री का फिल्टर नॉर्वे लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री के लिए भी सर्च करें तो यू कैन अप्लाई फिल्टर। तो यहाँ से फिल्टर नॉर्वे का आप सिलेक्ट हटा देंगे तो कोई और आ जाएगा। खैर, नॉर्वे के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो 19 प्रोग्राम ऐसे हैं इरास्मस के जिनमें नॉर्वे या तो स्टार्टिंग लोकेशन है या जो है उसमें पार्टनर है। इरास्मस में जो मोस्टली इनकी डिग्री के 4 सेमेस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। पहला सेमेस्टर एक कंट्री में होता है, दूसरा दूसरी में होता है, तीसरा तीसरी में होता है। उनमें से एक कंट्री होस्ट होता है जहां से ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये प्रोग्राम है मैन्युफैक्चरिंग 4.0 बाय इंटेलिजेंट एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। अब ये प्रोग्राम, इसमें 4 कंट्रीज जो है वो पार्टनर्स हैं, फ्रांस, स्लोवेनिया, नॉर्वे, इटली। तो जो पहला कंट्री होगा इसमें होस्ट होगा, फर्स्ट सपोज इसमें जो होस्ट होगा वो फ्रांस होगा क्योंकि पहला कंट्री फ्रांस है। लेकिन आपका सेकंड सेमेस्टर स्लोवेनिया, नॉर्वे या इटली में हो सकता है। ये फिर आपके पास चॉइस होती है। जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आपसे पूछते हैं कि आपने जो सेकंड सेमेस्टर है वो किस कंट्री में पढ़ना है, थर्ड किस में पढ़ना है। आप अपनी प्रायोरिटी देते हैं एंड देन आपको उस हिसाब से इनकेस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप उन कंट्रीज में जाते हैं फॉर योर फुल मास्टर्स। इसी तरह दूसरा प्रोग्राम हाइड्रोजन सिस्टम्स एंड एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज है। इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा क्योंकि इनके लिंक्स प्रोवाइडेड है ये, तो आप इन लिंक्स पे जाके इनके बारे में जो है ना कंप्लीट डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि ये किस बारे में है, क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ रिक्वायरमेंट्स जनरल होती हैं वो मैं डिस्कस कर लूंगा, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक आपको ये डिग्री हो, तो वो फिर आपको इन लिंक्स पे जाके पता लगेंगी। तो इसमें तकरीबन हर बैकग्राउंड के बंदे के लिए आपको मिल जाएगा कोई ना कोई प्रोग्राम। बिजनेस वालों के लिए मिल जाएगा, हेल्थ वालों के लिए मिल जाएगा, एग्रीकल्चर वालों के लिए मिल जाएगा, कंप्यूटिंग सिस्टम्स वालों के लिए मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस वाले, रोबोटिक्स और कोजी, मतलब इसमें स्मार्ट सिस्टम्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने जनरल कोई एमएसए में किया हुआ है या लेकिन 16 ईयर्स मास्टर्स होना चाहिए, बैचलर्स होना चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइवेट तरीके से बीए करते हैं तो उनके चांसेस बहुत कम होते हैं।
तो जिनका लेट से मास्टर्स किया हुआ है, लेट से इंटरनेशनल रिलेशन और समथिंग, वो ह्यूमन राइट्स पॉलिसी प्रैक्टिसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। ये तो मैंने नॉर्वे का फिल्टर लगाया हुआ है। यू कैन अप्लाई फिल्टर्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज एंड सी कि आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, यानी आप कीवर्ड्स में भी सर्च कर सकते हो डिफरेंट कीवर्ड्स। खैर, ये मैंने आपको दिखा दिया, बाकी आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लेंगे। इसी तरह कोजी का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस पे भी जाके कोजी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के कौन कौन से कोर्सेज होंगे वो आप देख सकते हो। अच्छा, कोई भी सवाल हो यू कैन पुट इन टू चैट, हम फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्लाइड्स मैंने काफी डाली हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना इनको डिस्कस कर लूँ इन वन गो, और उसके बाद मैं फिर माइक की भी दे दूंगा कि आप बात भी कर सकते हो, परमिशन दे दूंगा। खैर, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो आइल्स की है। आइल्स आपको आपने की हुई हो इन केस यू आर अप्लाइंग टू मास्टर्स, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, हो सकता है हो, मेरी नॉलेज में ना हो, जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आइल्स करना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो उसकी वर्थ को देखा जाता है। लाइक जो भी आप स्कॉलरशिप को हंट करना चाह रहे हो उसकी क्या वर्थ है, 90 लैक्स, 1 करोड़, लेट से 80 लैक्स की स्कॉलरशिप है आपकी 2 साल की। तो उसके आगे अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ आइल्स, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। आइल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आपके बहुत अच्छे बैंड्स हैं और आपकी अच्छी जीपीए है, तो आपको आइल्स बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है इन शॉर्ट लिस्टिंग। आप खुद को एवेल्युएटर के उस पर रख के देखें कि आपके पास 2 कैंडिडेट्स हैं, एक ने आइल्स किया हुआ है और एक ने आइल्स नहीं किया हुआ, हालांकि दोनों का जीपीए सेम है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली आप उसके साथ जाएंगे जिसने आइल्स किया हुआ है, क्योंकि उसके पास एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। आइल्स के अलावा अगर आपने टोफिल किया हुआ है तो वो भी एक्सेप्टेड होता है एरास्मस में, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप आइल्स ही करें, क्योंकि आइल्स आपको कहीं और भी अप्लाई करने में फायदा देगा, लाइक अदर स्कॉलरशिप्स इन इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, सो ऑन। सीजीपीए जो है 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए। आई नो इट्स हार्ट ब्रेकिंग फॉर दोस्त जिनकी सीजीपीए 2.5 से कम है, लेकिन मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे 2.5 इज मस्ट मिनिमम। बाकी जितनी ज्यादा है ऑब्वियसली उसको तो ज्यादा बेनिफिट ही होगा, जिसके 3.5 या कुछ लोग होते हैं जिनके 4 भी होते हैं जो एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, तो उनको ज्यादा एडवांटेज हो जाता है, लेकिन मिनिमम 2.5 होनी चाहिए। ये एवरेज सी ग्रेड इन ऑल कोर्सेज, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर किसी का सी से कम भी है तो इट्स ओके, पर जो यूरोपियन है वो इसको प्रेफर करते हैं कि एवरेज सी ग्रेड होना चाहिए। लेकिन लेट से आपका किसी कोर्स में डी भी है तो एवरेज तो सी बन ही जाता है, अगर आपके 2 ए हो और 1 डी हो तो एवरेज भी बनता है। तो दिस इज हाउ इट कैलकुलेट्स। अच्छा, एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सीलेंट से मुराद जीपी अच्छा हो तो उनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। और भी अगर आपने कोई कंपटीशन वगैरह विन किए हुए हैं तो आपके अगर जो सीवी में है वो मेंशन है, तो दैट कैन प्ले अ गुड रोल। सोशल एक्टिविटीज लोग करते हैं, सेशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं डिफरेंट सोसाइटीज में। वो लोग जो है मतलब होते हैं सोशली एक्टिव होते हैं, तो उनको भी थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आपकी सीवी हाईलाइट करती है कि यू आर सोशल। तो बट उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी एकेडमिक्स की है, तो ऑब्वियसली एकेडमिक्स की ज्यादा वर्थ है एज कम्पेयर टू सोशल एक्टिविटीज, बट सोशल एक्टिविटीज डू हैव some advantage. ओके, डॉक्यूमेंट्स कुछ लोगों को पहले से पता होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये जनरल से डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं नॉर्वे के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इसको मत भूलिएगा, लेकिन मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में ये एक्सेप्टेड है, और इरास्मस के केस में भी ये डॉक्यूमेंट सारे रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो पासपोर्ट, अगर जिसने बाहर जाना है उसका पासपोर्ट नहीं है तो मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पासपोर्ट लाजमी बनवा लें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट और वैलिड डॉक्यूमेंट है जो आपसे मांगा जाता है ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन। डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि मैं अभी कर रहा हूँ बैचलर्स, मेरा आखिरी सेमेस्टर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? तो उनको स्ट्रेट नो है, क्योंकि डिग्री आपके पास होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए, और सिर्फ डिग्री ना हो, वो एचईसी से अटेस्टेड भी हो। एक तो आपको डिग्री यूनिवर्सिटी देती है, वो एचईसी से अटेस्टेड नहीं होती, तो एचईसी से सेपरेटली अटेस्ट करवाई जाती है, उसका एक अलग प्रोसीजर है। वो आप गूगल पे लिखेंगे कि एचईसी अटेस्टेशन, तो आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन फॉलो दैट।
इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन की आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए, लाइक डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट और डिग्री दोनों होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करा दिए थे, तो आप उसके डुप्लीकेट निकलवा लें बोर्ड से, वो निकल जाते हैं। और उनको भी आप बोर्ड से अटेस्ट करवा लें। एक तो आपने निकलवा लिए, लेकिन अटेस्ट अलग से होते हैं। ये हम पाकिस्तान में थोड़ा रोला है, मतलब दो अलग प्रोसेस है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। आईएल्स का आपको सर्टिफिकेट 7 डेज तक मिल जाता है। तो जब एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उससे 15-20 दिन पहले आईएल्स का अटेम्प्ट दे दें। अगर आप उससे पहले नहीं दे रहे तो मे बी इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो आपको 7 दिन तक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और एप्लीकेशन के टाइम पे या एप्लीकेशन की डेडलाइन से पहले पहले आपको आईएल्स का सर्टिफिकेट चाहिए। यूरोप के केस में जो सीवी रिक्वायर्ड होती है वो होती है यूरो पास सीवी। तो वो भी आप गूगल पे लिखेंगे यूरो पास, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यू कैन गो देयर, यू कैन मेक योर सीवी, इट्स रियली इजी। वो आपको एक फॉर्मेटेड सीवी मिल जाती है। रिकमेंडेशन लेटर्स यू कैन गेट इट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो एक्सपीरियंस रिसर्चर या प्रोफेसर आपको अगर कोई सुपरवाइज कर रहा है, या जिससे आपकी इंटरेक्शन हुई है, जिसने आपको कोई कोर्स पढ़ाया है, तो उसको प्रायोरिटी पे रखें इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिकमेंडेशन लेटर्स। तो दो एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। ये रिकमेंडेशन लेटर्स एक्सपायर नहीं होते, तो आपने कभी भी लिया में इट कैन वर्क। भले मोस्ट रिसेंट ना हो, 1 साल पहले के हो, तो दे कैन वर्क वेल। मोटिवेशनल लेटर आपको चाहिए होता है फॉर एरास्मस, तो उसके आपको हजारों सैंपल मिल जाएंगे गूगल से, यू कैन सर्च। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक फेसबुक ग्रुप है सिंधी स्टूडेंट्स इन यूरोप, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एरास्मस के थ्रू, दूसरी स्कॉलरशिप के थ्रू। वहाँ पे आप कमेंट पोस्ट कर सकते हो, आपको जो है ना मोटिवेशन लेटर मिल जाएंगे। इवन दे कैन गाइड यू, दे कैन चेक योर मोटिवेशनल लेटर, दे कैन हेल्प यू हाउ टू राइट इट। लेकिन आपने खुद देन दे कैन गाइड यू हाउ टू मेक इट बेटर। वीजा के डॉक्यूमेंट्स कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। नॉर्वे के केस में यू कैन ऑब्टेन अ चेकलिस्ट फ्रॉम यूडीआई। ये बाद का प्रोसेस है, तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद का प्रोसेस है कि वीजा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो आप बाद में भी सर्च कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, या किसी भी सीनियर से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्वे के केस में आपने देखना है तो यू कैन सर्च फ्रॉम यूडीआई। यूडीआई वेबसाइट आप लिखेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है दैट नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के, तो आप प्रोग्राम के उस पर लिंक पे जाएंगे तो यू विल फाइंड द एग्जैक्ट डेडलाइंस। पर नॉर्मली मोस्टली जो है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं, और उनकी डेडलाइन होती है दिसंबर टू जनवरी, और रिजल्ट्स आ जाते हैं मार्च टू मई। तो रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, एंड देन आप अगस्त से अपनी स्टडीज शुरू करते हैं। तो जो अगले साल अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, तो दे शुड बी रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज सितंबर अभी आने वाला है। तो यू कैन अप्लाई, एंड आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो 1 साल के बाद होगा, मतलब जो डिग्री प्रोग्राम, तो वो अगस्त में होगा। तो ये प्रोसेस आई नो इट्स वेरी लेंथी, बट क्या करें, यही प्रोसेस है, देयर इज नो अदर प्रोसेस। तो ये तो हो गया एरास्मस के बारे में। आई नो इट वाज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा, तो यू कैन आल्सो सर्च बाय योरसेल्फ ऑन फेसबुक, ऑन डिफरेंट फेसबुक ऑन गूगल, ऑन डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं नॉर्वे के कॉन्टेक्स्ट में, और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में? ये है कि आपको 20 आवर्स पर वीक आपको मिल जाती है परमिशन काम करने की, जो कि 4 आवर्स पर डे है। यू कैन अर्न 17 to 19 यूरो पर आवर, जो कि दिन के कोई बनते हैं आई थिंक 60 to 70 यूरो। आप गूगल पे लिखेंगे यूरो इंटू पी क्या, यू विल गेट द रेट, लेकिन 6 3 द 18,000 to 20,000 पर डे यू कैन अर्न। एंड यू कैन वर्क इन ओनली इन वर्क डेज, जो कि मंडे टू फ्राइडे है, वीकेंड पे छुट्टी होती है। ऑन वीकेंड यू कैन वर्क फुल टाइम इन नॉर्वे। बाकी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में कहीं पे अलो होता है, कहीं पे नहीं होता। क्या काम करना है? डिफरेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट असिस्टेंट्स की पोजीशन होती हैं, रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन होती हैं,
टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन है। मैं खुद एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम कर चुका हूँ, जिसमें आपको टीचर की हेल्प करनी होती है इन कंडक्टिंग लैब्स, एंड यू कैन टीच एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर एज वेल। तो आप पढ़ाते भी हो, एंड देन टू बैचलर्स स्टूडेंट ऑब्वियसली बिकॉज आई एम फ्रॉम मास्टर्स, तो आई विल बी टीचिंग असिस्टेंट इन बैचलर कोर्सेज। लोकल आईटी सेक्टर और जॉब मार्केट में भी आप सर्च कर सकते हो जॉब, अगर आपके ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है या आपको स्किल्स हैं तो यू कैन सर्च जॉब इजीली। कुछ लोग और जॉब्स भी करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह पे काम करना। पे स्केल सेम होता है, बट कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम होटल पे काम करें, रेस्टोरेंट में काम करें, तो वो भी हो जाता है, वो भी जॉब्स मिल जाती हैं। बट वहाँ पे वो लोग प्रेफर किए जाते हैं जिनको नॉर्वेजियन आती हो। दो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी प्रेफर करते हैं कि जो कस्टमर डीलिंग हो वो लोकल लैंग्वेज में हो, तो वहाँ पे नॉर्वेजियन कैन प्ले वेरी गुड रोल अगर यहाँ पे आकर आप नॉर्वेजियन सीख जाते हो। और ये बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे तो लैंग्वेज का बड़ा मसला है, जैसे फ्रेंच और इटली वगैरह में आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए जॉब के लिए मस्ट, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश इतना नहीं बोलते। खैर, मैंने बताया था कि मैं नॉर्वे में वर्किंग के बेनिफिट्स बताऊंगा। इसका रीजन यही है कि इनकेस अगर आप मास्टर्स के लिए आ जाते हो तो लोग यही कहते हैं कि हम वापस ना जाएं और यहीं पे रहें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके आप बहुत सारे बेनिफिट्स देखते हो, आपकी आप खुद की इज्जत देखते हो, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत जगहों पे हमें नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे आके जो ह्यूमन की रिस्पेक्ट है और जो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, तो फिर लिविंग स्टैंडर्ड देख के बंदा कहता है कि बंदा यहीं पे रहे और अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ही बुला ले। तो वो फिर प्लान करके आता है कि यहाँ पे आने के बाद अगर प्लान ना भी करके आप, माइंड चेंज हो जाता है कि मैंने यहाँ पे जॉब करनी है, यहाँ पे रहना है, यहाँ का पासपोर्ट लेना है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे काम करने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है आपको नॉर्वे में, यूरोप में आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉप कंट्री आफ्टर स्विट्जरलैंड, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। सैलरीज बहुत अच्छी हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी क्या अर्न कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। एज ए फुल टाइम क्या अर्न कर सकते हो वो मैंने एक स्लाइड डाली हुई है, आई कैन टेल। वर्क लाइफ पे यहाँ पे बहुत काम होता है, लाइक एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ एंड इस पे बड़ा फोकस होता है। तो आपको ओस्लो जो है ना दुनिया में फोर्थ रैंक्ड सिटी है इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। तो बहुत ज्यादा आपको सोशल एक्टिविटीज, पार्टीज एंड ऑल दैट मिल जाते हैं। यहाँ की कम्यून जो है वो भी यहाँ के सिटीजन्स के लिए बहुत सारे इवेंट्स, कंसर्ट्स ऑर्गेनाइज करवा रही होती है, वीकली कुछ ना कुछ हो रहा होता है, वीकेंड्स पे मार्केट्स लगती हैं, पार्टीज, ऑल दैट। तो बहुत ज्यादा आपको जो है ना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मिल जाएंगी। परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाती है 3 साल के वीजा के बाद। आप यहाँ पे एज ए वर्क वीजा पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको 3 साल में पीआर मिल जाती है। दैट इज रियली फास्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पीआर। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में 5 साल 10 साल लग जाते हैं। अच्छा, पीआर और सिटीजनशिप में डिफरेंस होता है। पीआर में ये होता है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, सिटीजनशिप नहीं मिलती। इट मीन्स के नेक्स्ट टाइम नॉर्वे आने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप लाइफ टाइम नॉर्वे कभी भी आ सकते हैं, यू हैव परमानेंट रेजिडेंसी। 3 साल के बाद वो मिल जाती है। नेशनलिटी या सिटीजनशिप जो मिलती है वो 5 साल के बाद मिलती है। लाइक 3 साल आपने काम किया और 2 साल और काम किया, मतलब टोटल 5 साल आपने यहाँ पे एज ए वर्क वीजा पे काम किया, तो देन यू कैन अर्न नेशनलिटी। 3 साल में पीआर मिल जाती है, 2 साल आप और यहाँ पे काम करें किसी कंपनी में या जिस कंपनी में काम करें उसी में, तो यू कैन अर्न यहाँ का पासपोर्ट। तो आई थिंक इट्स रियली रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट अ सेकंड नेशनलिटी। पाकिस्तानियों को अलो है, दे कैन गेट ड्यूअल नेशनलिटी, तो यू कैन कम हियर, डू मास्टर्स, देन सर्च फॉर जॉब, वर्क 5 years एंड देन गेट नेशनलिटी। उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, क्योंकि नॉर्वे जो है ना उसकी रेपुटेशन पासपोर्ट की बहुत हाई है। यू कैन गो टू ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली विदाउट वीजा। तो नॉर्वे की बहुत रिस्पेक्ट है दुनिया में नॉर्वे के पासपोर्ट की। प्लस में आप यहाँ के सिटीजन बन जाएंगे तो सिटीजन को यहाँ पे बहुत बेनिफिट है, आफ्टर रिटायरमेंट, पेंशन, ऑल दैट। अगर आपको कोई जॉब नहीं है तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट पे करती है, जो कि पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते कैसा हो सकता है। सैलरी पैकेजेस मैंने ये एक निकाला था गूगल से इंडीड के थ्रू, जो कि एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे होता है, उसको जो सैलरी मिलती है वो अराउंड
$6,000 पर मंथ तक मिलती है, जो कि 86,000 पर ईयर बनती है। पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो इट्स 16 लाख अप्रोक्सीमेटली, इंक्लूडिंग टैक्स। अगर हम टैक्स भी निकाल दें इसमें से तो 12-13 लाख रुपए बच जाते हैं ईच मंथ। तो एक्सपेंस इतना ज्यादा नहीं है लिविंग का यहाँ पे। लाइक लिविंग एक्सपेंस पर पर्सन आपको पड़ सकता है, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो 300 to 400 यूरोस, जो कि आप यहाँ पे इस अमाउंट में आराम से फैमिली रन कर सकते हैं। यू कैन डू सेविंग्स, यू कैन डू इन्वेस्टमेंट, ऑल दैट। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने लिंक दिया हुआ है। jobnorgia.no ये एक वेबसाइट है। नॉर्वे का एक सेंट्रल सिस्टम है जॉब हंटिंग का। यहाँ पे जाके यू कैन पुट योर प्रोफाइल, यू कैन, यहाँ पे कंपनीज जॉब अनाउंस करती हैं, यू कैन अप्लाई थ्रू दिस पोर्टल। अगर आप उनके उस पर रिक्वायरमेंट्स पे मैच कर जाते हैं तो दे कैन कॉल यू फॉर इंटरव्यू। और वीजा भी स्पॉन्सर करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आई थिंक जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में 3-4 साल जॉब करने का तो वो अप्लाई करे, क्योंकि बहुत फ्रेश के लिए यहाँ पे जॉब हंट करना इट्स रियली डिफिकल्ट। पर अगर आप यहाँ से मास्टर्स करते हो तो देन इट बिकम्स रियली इजी, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज हायर करने आती हैं, जॉब फेयर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, ऑल दैट। दूसरा रिसोर्स लिंक्डइन है, जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो नॉर्वे में जॉब। अगर वहां पे नॉर्वे की लोकेशन लगा लो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ जॉब्स फॉर ऑल डोमेन्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेशन। मैंने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई हैं इन केस अगर आपने मुझसे कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए या कोलेब्रेशन करनी है। मैंने रिसर्च इंटरेस्ट अपने बताए थे। इन केस अगर कोई मेरे सेम इंटरेस्ट में काम कर रहा है और रिसर्च करना चाहता है और मेरे साथ कोलेबरेट करना चाहता है, दे कैन कॉन्टेक्ट मी via ईमेल, via लिंक्डइन, via एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल मिल जाएगा ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। तो ये था, इट वाज ऑल अबाउट सेशन। In last, I would like to say thank you to SEO for inviting me. अब मैं दीपिका को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक ऑन करें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, they can share. Thank you. First of all, thank you, Subhan, for this very informative section today. Thank you so much. Yes, if anybody has a question, अगर किसी को भी question है तो you may ask. आप पूछ सकते हैं क्योंकि it's a Q&A session now. So please ask. ऐसे करते हैं कि इनको जो है ना हम दे देते हैं ऑप्शन टू अनम्यूट, लेकिन वन बाय वन अनम्यूट करें ताकि सेशन जो है उसमें कोई मसला ना हो। अगर किसी को भी क्वेश्चन है जस्ट रेज योर हैंड क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हैंड रेज, उसका नेम कॉल करें देन दे कैन अनम्यूट। एंड तो हसनैन रजा फ्रॉम मीर प्रकाश, आप अनम्यूट करें एंड देन लेट अस नो के क्या सवाल है आपका। Assalamualaikum. I am from Hyderabad. I am a civil engineer and I graduated from Nawab Shah Qaid-e-Imam. And I have 5 years you have work experience. Now I want to apply for Ireland for work visa, or even Australia for student visa. So can you help me in this? Help in what sense? Like you are in way of job? I want to properly apply for work visa to for Ireland. So I really can't find any proper path and nobody. वर्क वीजा के लिए जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज होती है दैट इज टू फाइंड जॉब। आपको पहले जॉब हंट करनी पड़ेगी। इन केस अगर आपको जॉब मिल जाती है इन एनी आयरिश कंपनी तो देन यू कैन अप्लाई वर्क वीजा। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। जब आपको जॉब मिल जाती है तो कंपनी आपको एक स्पॉन्सर लेटर देती है, एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इट्स रियली इजी। अगर आप VFS ग्लोबल या जेरीज के बारे में जानते हैं तो वो हैंडल करते हैं तकरीबन यूरोपियन वीजा फ्रॉम पाकिस्तान। तो आई थिंक इट्स अ लेटर प्रोसेस। पहले आप जॉब हंटिंग पे काम शुरू करें, लिंक्डइन के थ्रू, आयरिश का अपना पोर्टल भी है उसके थ्रू जॉब हंट करें एंड देन
इट बिकम्स रियली इजी। तो पहले हम जो क्वेश्चन है वो चैट वाले आई थिंक कर लेते हैं एड्रेस, एंड देन हम फिर हैंड रेजेस की तरफ जाते हैं। तो साहिल का सवाल है कि अर्लियर एजुकेशन इन नॉर्वे वाज फ्री, नाउ आई हैव हर्ड दैट दे आर टेकिंग फीस, व्हाट इज एवरेज फीस एंड यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। यस साहिल, अनफॉर्चुनेटली पहले यहाँ पे एजुकेशन फ्री था और अब जो है इन्होंने खत्म कर दिया है और इसी साल से खत्म किया है। तो फीस बहुत हाई है, एवरेज फीस इज अराउंड 1,70,000 क्रोनर्स, नॉर्वेजियन क्रोन। पाकिस्तानी करेंसी में बनती है अराउंड 60 to 70 lakhs, जो कि पर ईयर आई थिंक इट्स रियली ह्यूज। इतना तो लिविंग एक्सपेंस भी नहीं है काफी कंट्रीज में, तो सेल्फ फाइनेंस पे नॉर्वे आना इट्स रियली काइंड ऑफ बैड डिसीजन। अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटीज जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस उन्होंने नहीं की, लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर में भी यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप अनाउंस करें, क्योंकि ये लोग फॉलो करते हैं स्कैंडिनेविया को, और स्कैंडिनेविया के जो दूसरे कंट्रीज थे लाइक स्वीडन एंड फिनलैंड, उन्होंने जब फीस खत्म की थी तो दे अनाउंस स्कॉलरशिप इन द वेरी नेक्स्ट ईयर। तो हम भी यही होप कर सकते हैं कि मे बी नेक्स्ट ईयर से जो है वो कुछ स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाएं। इनकेस अगर हो भी जाती हैं तो वी कैन आई विल पोस्ट एटलीस्ट ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, बट हम एसईओ को भी शेयर कर देंगे, अगर आप उनके ग्रुप में है तो दे कैन पोस्ट इट देयर एज वेल। ओके, मंजर अली का सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, सच अ वंडरफुल सेशन। नो प्रॉब्लम मंजर, थैंक यू so much for commenting. I am a third year student at Department of Education at CBU and I want to pursue my MPhil in foreign. So can you tell me any scholarship for MPhil? देखें, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे डिफरेंट डोमेन्स की स्कॉलरशिप नहीं पता, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। मैंने आपको पोर्टल बता दिया। आई थिंक एजुकेशन गाइज कैन अप्लाई फॉर, एक मैंने दिखाई थी एरास्मस की, दैट वाज अबाउट वन सेकेंड सिराज, हम थोड़े चैट वाले क्वेश्चन एड्रेस कर लें तो देन वी कैन कम टू यू। तो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड मैंने एक प्रोग्राम दिखाया था, उसमें आई थिंक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फिर डिटेल्स में जाने के लिए उनके लिंक्स पे जाएं, देखें। ओके, अनम्यूट करें आप शिराज, क्या पूछ रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शिवान भाई, मैंने जो है वो बीकॉम किया हुआ है 2 years का, एंड नाउ आई एम डूइंग जॉब इन प्राइवेट सेक्टर व्हिच इज इंटरनेशनली नोन एट Atlantic Service. So since 2019 to till date, can I apply for fully funded scholarship because I have 2 years graduation? देखें शिराज, एक्चुअली जो 2 year बैचलर्स होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं है इंटरनेशनली, इट्स रिकॉग्नाइज इन पाकिस्तान, लेकिन इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज हैं दे डिमांड फॉर एटलीस्ट 3 years बैचलर्स, जो कि 3 year तो पाकिस्तान में होता नहीं है, तो पाकिस्तान में 4 year होता है, तो 4 year वाले ही कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट यू कैन सर्च, अगर सर्च करें एरास्मस में तो नहीं हो सकता एटलीस्ट, बाकी कहीं और देखें, मे बी कोई हो, मेरी नॉलेज में नहीं है अभी तक। अच्छा, मतलब अगर मैं कहीं और अगर 2 साल की एमए कर लूं तो 16 years एजुकेशन हो जाएगी, उसके बाद कर सकता हूं मैं? देखें, वो एजुकेशन होगी, वो डिग्री नहीं होगी, वो डिमांड करते हैं डिग्री जो आपकी 3 साल की हो मिनिमम। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिग्री एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो वो भी आपका 2 year का मास्टर होगा, 2 year का बैचलर होगा, तो दैट इज नॉट काउंटेड एज अ 3 year बैचलर और 4 year बैचलर। तनवीर, आपका कोई सवाल है? मेरा ये सवाल है सुभान भाई के प्रोफेसर के थ्रू हम कैसे स्कॉलरशिप ढूंढ सकते हैं? प्रोफेसर्स के थ्रू, जो प्रोफेसर्स होते हैं दे मोस्टली रन रिसर्च ग्रुप, तो उनके पास रिसर्च फंडिंग होती है, तो वो उसी में से देते हैं।
मीन्स वो तो सारा प्रोसेस डिफरेंट होता है ना, वो कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, वो आपको प्रोफेसर ही बताएगा कि वो आपको कैसे बनाना चाहता है। Vivo V2027, आई डोंट नो योर नेम, आपका कोई सवाल है? अफसाना परवीन आप पूछ लें, आई थिंक उनका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं केमिस्ट्री में बीएस कर रही हूँ, तो केमिस्ट्री वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है नॉर्वे में? आप गाइड करें प्लीज। इरास्मुस आपको बताया ना, ये इरास्मुस का मास्टर्स प्रोग्राम दिखाया जो केमिस्ट्री के एक दो थे ना। इस पे पोर्टल पे जाएं एंड देन उसकी डिटेल में जाएं कि क्या क्या मांग रहे हैं वो एंड कैसे अप्लाई करना है। शमीम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि बीबीए के लिए अपॉर्चुनिटी आपने तो बता दिया, चलो हम ढूंढेंगे, तो उसकी आइल्स की क्या प्रोसीजर होता है? अब सखर आईबी ने तो इंग्लिश प्रोफेशनसी, मेरे ख्याल से मैं भी सखर आईबी का स्टूडेंट हूँ ना, तो वो तो इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट दे देते हैं। क्या हमें फिर भी अप्लाई करना होगा आइल्स के लिए? और बैंड्स कितने चाहिए बीबीए के लिए? और कौन से अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं नॉर्वे में या यूरोप में? आई थिंक बैंड्स तो बीबीए के केस में तो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन सबके लिए ही है कि 6.5 होने चाहिए मिनिमम फॉर मास्टर्स। जितने ज्यादा होंगे उतने बेहतर है, लेकिन 6.5 मिनिमम। अगर 6.5 से कम आते हैं तो देन यू कैन नॉट अप्लाई, यू आर नॉट एलिजिबल, इट्स बेसिकली अ रिक्वायरमेंट। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो जहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप एज ए अल्टरनेटिव नहीं दे सकते, क्योंकि आइल्स एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। सखर आईबीए का जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। तो जहाँ पे आइल्स मांगा गया है वहां तो आइल्स देना पड़ेगा। बाकी आइल्स देने का प्रोसेस आपने पूछा, जो आपका तीसरा सवाल था वो ये था कि आइल्स का प्रोसेस क्या है। तो आइल्स जो कंडक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है ब्रिटिश काउंसिल, पाकिस्तान में जो करती है। तो ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाके आप आइल्स बुक कर सकते हैं। यू कैन चूज योर सेंटर कि आप कहाँ पे देना चाहते हैं। फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, आप घर पे बैठ के नहीं दे सकते। तो सेंटर्स बहुत सारे हैं, कराची में भी है, इवन सखर में भी है, सखर आईबी में भी सेंटर है, ईडीसी में। तो डेट्स आ जाती हैं कि कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप दे सकते हो, तो आप वो डेट चूज करें, सेंटर चूज करें, फीस पे करें एंड आप आइल्स दे सकते हैं। विद इन 7 डेज आपको रिजल्ट मिल जाता है। जिसने सवाल कर लिया है वो अपना हैंड वो कर दे, या मैं ही कर देता हूँ। खैर, और किसी का कोई सवाल है चैट में? वीवो V027 कह रहे हैं कि डियर सुभान, मैं सीबा में एनएफटेक कोर्स करता था, आपको फॉलो करता हूँ, अपनी एक्सपीरियंस गाइड करते थे। अच्छा, सवाल क्या है आपका? मुझे मास्टर्स के लिए गाइड करें, तो भाई ये सेशन क्या दिया है? पूरा रेसिपी तो दिया है गाइड ही किया है, सुना नहीं था आपने? अच्छा, being a third year 6th semester student of computer science, I am searching for work visa, planning for IELTS after my this semester. What is the process for hunting work visa? मुस्कान, प्रोसेस मैंने बता दिया ऑलरेडी। अगर आपने नहीं सुना तो हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, उसको दोबारा सुन लीजिएगा। I have completed 2 years BCom and 2-year MBA from KU. 3.7 GPA मेरा, but it is equivalent to 16 years education. Can I apply for masters from this scholarship and the gap is now 6+ years? Am I eligible? I think gap का कोई मसला नहीं है, you can apply for a second masters, लेकिन again आपकी जो education है वो 2-year BCom है। जो मास्टर्स प्रोग्राम है इन यूरोप स्पेशली, दे डिमांड कि आपका एटलीस्ट 3 years का मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, सॉरी 3 year बैचलर
जो कि आपका नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो के यू विल बी एलिजिबल, बट आई थिंक ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। फ्री अप्लाई है तो अप्लाई कर दें, देखें उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। Sahil, last question. I have got Stipendium Hungarian Scholarship for MSc. Should I join it? And can I move to Norway after completing my studies? Because salaries in Hungary are very, very low. Yes, congratulations, Sahil, for getting this scholarship. I think इसमें पूछना तो नहीं बनता कि should I join it. आपको अगर एक स्कॉलरशिप मिली है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। बट नॉर्वे आने का जो आपने सवाल किया कि मैं आ सकता हूँ, यस यू कैन कम। आप जो है नॉर्वे ड्यूरिंग योर मास्टर्स फ्रॉम हंगरी यू कैन अप्लाई फॉर जॉब हियर, और अगर आपको जॉब मिल जाती है यू कैन कम फॉर जॉब। और आप सेकंड मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए भी कर सकते हैं, इवन पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं आफ्टर योर एमएससी। पीएचडी भी आप नॉर्वे में कर सकते हैं, और पीएचडी एज ए वर्क काउंट होता है नॉर्वे में। आप वर्क वीजा पे होते हो ड्यूरिंग योर पीएचडी, और बहुत अच्छी सैलरीज हैं, लाइक 30-40 हजार नॉक तक सैलरी होती है एक पीएचडी की, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाता है इतना पीएचडी करने वाला यहाँ कमाता है। तो एक मुझे डायरेक्ट में क्वेश्चन आया है आंचल का कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्स। आइल्स के लिए मैंने जो मेथड यूज किया था, मैंने भी आइल्स किया हुआ है बेसिकली। मैं जब नॉर्वे आया था मैंने जो मेथड यूज किया था, एक वेबसाइट थी, मैं चैट में सेंड कर देता हूँ, IELTSonlinetest.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके डिफरेंट मॉक टेस्ट दे सकते हैं आइल्स के, और देख सकते हैं कि आपके कितने बैंड आते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड वेबसाइट टू प्रैक्टिस आइल्स। बाकी स्पीकिंग वगैरह के लिए मैं तो खुद से बात करता था, आप भी खुद से बात करें इंग्लिश में जब फ्री हो, तो आई थिंक आपका आइल्स क्लियर हो जाएगा। फरयाल, आपने माइक ऑन किया हुआ है, डू यू हैव एनी? नो, फरयाल नहीं, फरजान। इट्स फ्री बसीरत, आप फ्री में कर सकती हैं। एक दूसरी भी है आइल्स अप। आप गूगल पे लिखेंगे आइल्स अप तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, IELTSUP.com के नाम से। तो दैट इज आल्सो रियली गुड फॉर प्रैक्टिसिंग आइल्स। सर आपने कहा CS स्टूडेंट कैन अप्लाई, व्हाट अबाउट AI? जी, AI वाले भी कर सकते हैं। AI वाले भी तो CS डिपार्टमेंट का ही पार्ट है, कोई अलग डिपार्टमेंट तो नहीं है आई थिंक। बट आई डोंट नो कि AI की कोई बैच रिसेंटली ग्रेजुएट हो रही है IB से। अगर हो रही है तो दे कैन अप्लाई, दैट्स व्हाट आई नो। कोई और सवाल है किसी को? दे कैन ओपन माइक एंड डिस्कस, अदरवाइज फिर मैं दीपिका को इनवाइट करूंगा फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स। अभी 2 सवाल आए हैं दीपिका, सो यू हैव टू वेट। Sarfaraz, can you please show the slide which enlisted the scholarship requirement? Yes, sure. This one or documents? Requirements में 2.5 CGPA, IELTS 6.5 और अच्छी academics background हो। डॉक्यूमेंट्स ये हैं। एनीवेज सर, मैंने लेट ज्वाइन किया, टेक्नोलॉजिस्ट बेस पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री की मास्टर्स के लिए अपने नॉर्वे के लिए बताया तो मैं रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगा। जी बताया था, एक डिग्री का नाम बताया था कोजी के नाम से, उसमें मेरे कुछ इलेक्ट्रिकल के दोस्त भी पढ़ रहे हैं। पहले से दोस्त नहीं थे, यहाँ पे आने के बाद ही हुए हैं, लेकिन दे आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, क्योंकि उन्होंने सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह पढ़ी हुई है, तो दे नो मैटलैब वगैरह रियली वेल। तो इसमें भी इमेज प्रोसेसिंग और मैटलैब से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उनको एक एज होता है, तो यू कैन अप्लाई आई थिंक। What about exchange semester and which semester we can apply for exchange and what's the criteria for applying an exchange? क्राइटेरिया तो आपको मैं आई थिंक फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज, जो कि CS डिपार्टमेंट का पार्ट है इन सकराई भी।
बाकी टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूछनी है तो आप जो हमारा नोटपार्ट का कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर शेर, उससे मिलके देखें, या डॉक्टर जावेद शाहानी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था प्रीवियस, उससे भी मिलके देख सकते हैं, उनको पता है। आई थिंक नाउ दीपिका इट्स ओवर टू यू। क्वेश्चंस हमने एड्रेस कर लिए हैं, बाकी अगर किसी का कोई सवाल है दे कैन ऑलवेज रीच मी ऑन दीज कॉन्टेक्ट। लिंक्डइन पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, ईमेल कर सकते हैं, मेरी लिंक्डइन की आईडी है, मैं अभी चैट में भेज देता हूँ। Thank you so much, Mr. Shubhan Ali Mangi. Thank you so much from Sindh Educational Organization for this really very beneficial and very informative session today. Thank you so much for your time. And hopefully सबके questions को answer मिल गया होगा. So I think we should end the session. So हाँ, मैंने जो अपना लिंक्डइन का भेज दिया है, एंड थैंक यू वंस अगेन दीपिका एंड टू एंटायर एसीओ टीम, दीपिका फॉर होस्टिंग दिस इवेंट एंड एसीओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। फ्यूचर में भी कोशिश करेंगे ऑन some other topic, and good luck to everyone who is ambitious, who is hardworking, जो कि अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं और कुछ करना चाहते हैं। Hopefully you will do something really good and better for yourself and your family. Thank you so much, and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.